वेलकम बैक यंग माइंड्स। आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप के चैप्टर फंडामेंटल 1 के साथ, जिसका पार्ट 5 आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपसे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और केस स्टडीज को डिस्कस करूंगा। आप हर केस स्टडी को माइन्यूटली नोट कीजिए। कंटेंट वही है, कंसेप्ट वही है जो हम अर्लियर अपने पार्ट 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली में स्टडी कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट with your exercise questions, with your problems. बेटा पहला पार्ट जो आपके पास यहां पर विजिबल है, that relate with what your partnership deed. पार्टनरशिप डीड के साथ कुछ क्वेश्चंस है, और डीड के अंदर मैंने जब भी आपको टीच किया है, जब भी उसकी रेपिटेशन दी है, तो कुछ कंटेंट्स को बड़ा क्लियरली डिफाइन किया है। नंबर 1, that profits and losses to be shared equally. Number 2, that is interest on loan to the partner will be allowed if a partner has provided a loan to the business at the rate of what 6%. And number 3, कुछ भी याद नहीं रखना है, that is neither the interest on capital nor the interest on drawing, or we are not to provide any kind of salary or commission to the partner. अब शुरू करते हैं, कंसेप्ट हमारे पास है क्या। पहला पॉइंट मैं थोड़ा सा स्पीड से लेके चलूंगा सो दैट कि जितने क्वेश्चंस मैंने यहां पर डिटरमिन किए हैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस कर सकूं। आप इन बिटवीन ये काम कर सकते हैं कि पेपर यहां पर जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास विजिबल है उसके स्क्रीनशॉट्स लीजिए सो दैट आपके पास एक रेडी मटेरियल बन जाए। पहली बात, डीड इज साइलेंट इन क्वेश्चन नंबर 1, तो हाउ द फॉलोइंग इज टू बी डेल्ट इन। तो भाई डील कैसे करना है? सैलरीज टू द पार्टनर्स, राइट, इट इज नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, इट इज व्हाट नॉट एप्लीकेबल। Interest on loan, it will be 6% per annum if deed is silent. Divisible of profit is to be divided what? Equally. Then next, interest on partners drawings, it is not applicable. And finally, interest on loan given to partners, that is, it will be again not applicable. In simple terms, it will not be charged. Only interest on loan by partner, which is in the answers as well, 6%, and division of profits, that will be what? Equal. Moving to statement number 2, M, R and S are the partners. They don't have deed. दूसरा क्वेश्चन फिर वही है, deed कुछ नहीं है। अब यहां पर महेश wants interest on capital, right? But रमेश and सुरेश इसको एग्री नहीं करते। तो we know if deed is silent, interest on capital will not be allowed, so it is not going to be allowed, not applicable. We may write that is no interest on capital. You may write over here that is no interest on capital to the what? Partners. Next, Ramesh wants that he should be allowed to draw a salary. Again, no salary. Salary के ऊपर भी आप क्रॉस लगा दीजिए। Same, salary will not be allowed to any partner if deed is silent. 3, Mahesh and Ramesh wants Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh agree नहीं करता। अब लोन किसने दिया? फर्म ने। किसको दिया? टू सुरेश, राइट। यहां पर अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड बाय द बिजनेस. This is number C, and here you can claim here in the answer as well. Suresh will not pay any interest in absence of deed. Next, Mahesh and Ramesh contributed more capital. इन दोनों ने क्या किया? Capital contribution ज्यादा दिया हुआ है. So desire कि profits should be distributed in the ratio of their capital. So Suresh does not agree. So again we can say land over here again very clearly कि यहां पर प्रॉफिट्स जो पहला पॉइंट था, दैट आर टू बी, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड व्हाट? इक्वली शेयर करने हैं। ये पॉइंट को समझ लीजिए केयरफुली। आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। दिस इज नाउ अगेन सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इज नो चेंज इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 respectively. I am taking question number 3 that we have 3 partners, right? P used, अब इस केस को थोड़ा सा केयरफुली समझना। P used 50,000 belonging to the business and made a profit,
बेटा ये चीज मैं आपके साथ पहले भी अर्लियर कंसेप्ट को टीच करते हुए डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस की अमाउंट को यूज करता है और उसे प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट फर्म को देगा, और अगर उसे लॉस आता उसी अमाउंट को यूज करने पर तो वो लॉस अकेला ही बियर करेगा जिस पार्टनर ने विदाउट ब्रिंगिंग इन फर्म्स नोटिस उस वैल्यू उस अमाउंट को यूज किया है। नाउ इन फर्स्ट केस यहां पर पी ने अमाउंट को यूज किया एंड ही अर्नड ए प्रॉफिट। यहां पर उसने क्या किया, दैट इज प्रॉफिट अर्न किया। अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो प्रॉफिट क्या करेगा, वो फर्म को देगा। वाई इन सेकेंड केस क्यू ने 10,000 यूज किया और इंकर्ड ए लॉस, तो वो लॉस अकेला ही बियर करेगा। फर्म मींस पी एंड आर इसके साथ इस लॉस को बियर नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, पी क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। बेटा एक चीज फिर यहां पे नोट कीजिए, 3 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, 2 पार्टनर्स एक पर्टिकुलर डिसीजन की फेवर में जा रहे हैं कि गुड्स आर टू बी परचेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर सप्लायर। यहां पर सप्लायर का नाम है हमारे पास स्टार लिमिटेड, लेकिन तीसरा पार्टनर आर इस पर एग्री नहीं कर रहा। इन दिस केस हम एक आर्बिट्रेशन क्लॉज को लेकर चलती है इन पार्टनरशिप डीड कि जहां पर कंसेंट नहीं बनेगी वहां पर जर्नली करेक्ट, नॉट ऑलवेज, जर्नली जो डिसीजन है मेजॉरिटी जिसको फेवर करेगी उसके बेसिस पे जाएगा। यहां पर द गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम स्टार लिमिटेड ऑल्दो आर डज नॉट एग्री बट मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। 3 पार्टनर्स हैं, 2 मेजॉरिटी का पार्ट चले गए, तो इसलिए गुड्स हम स्टार लिमिटेड से बाय कर सकते हैं। इवन आर डिडंट एग्री टू दिस। Q and R want that admit W as a partner, but P, जहां तक एडमिशन का मैटर है, all partner must agree according to partnership act, right? So R ने P एग्री नहीं किया तो W will not be admitted, W को एडमिट नहीं करेंगे एज ए पार्टनर। तीसरा, R had gave loan of ₹2 lakh firm और वो इंटरेस्ट कितना डिमांड कर रहा भाई, 10%, एंड वी नो कि इन एब्सेंस ऑफ डीड जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट विल नॉट एक्सीड व्हाट, अगेन रेपिटेशन है सिर्फ बेटा आपकी, दैट इज 6% पर एनम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। मैं थोड़ा सा इसको वाइडर कर देता हूं सो दैट विजिबिलिटी आपकी ज्यादा अच्छी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एज वेल। बी, टी एंड एस आर द पार्टनर्स, उनके पास कोई डीड नहीं है। यहां पर एक कंटेंट को देख लीजिए, वरुण ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया फर्दर एडिशनल इस डेट को, शिवम ने लोन लिया 50,000 का बिजनेस से, डिस्प्यूट अराइज किए। अब डिस्प्यूट क्या अराइज किया है, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन ₹5 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल जो उसने दिया। तरुण डिजायर्स, एक काम करते हैं साथ साथ ही से सॉर्ट आउट करते हैं। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आना ही नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब मर्जी कैपिटल इंट्रोड्यूस करो। हाँ एक चीज कंसिडर कर लो, वरुण इंस्टेड ऑफ फर्दर कैपिटल के इसको लोन की फॉर्म में दे देता तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेबल है अगेन एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट पॉइंट, तरुण डिजायर कि उसके सन को एडमिट किया जाए, राइट, और उसका आधा शेयर वो अपने पास से देगा। वरुण एंड शिवम डोंट एग्री नहीं कर रहे ना, तो इन दैट केस नो एडमिशन टू एनी न्यू पार्टनर, सभी का एग्री करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट, वरुण एंड तरुण आर फ्यू, शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, right, from firm lending rate of the banks which is 12%, which Shivam objects। अब सी पॉइंट के ऊपर आप बड़ा केयरफुली दे सकते हैं कि अगर बिजनेस ने किसी पार्टनर को लोन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, इन दैट केस नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज क्योंकि रेट हैज नॉट बीन एग्रीड अपॉन। एंड फाइनली Tarun has withdrawn ₹50,000 the firm for what personal use, और उसके ऊपर दूसरे पार्टनर्स क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट आए। बेटा देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक कंटेंट को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, मैं दोबारा रिपीटिशन दे रहा हूं,
profit and losses to be shared equally, number one. Number two, it is interest on loan to partner. तब जब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, it will be at the rate what 6% per annum. Rest all it is going to be what nil, not applicable, will not be provided, will not be allowed. It is to be taken into consideration. I'm moving to the next part, that is question number 5. I'm leaving this question for you people only. Please take a screenshot so that we shall be in a position to move to the next point. I'm moving with question number 6 now. अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 जो मेरे पास रिलेट कर रहा है, दैट इज विद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म. अब बेटा इनके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन मेरे पास शुरू हो चुका है. न्यूमेरिकल कंटेंट को आपको बड़ा आराम से सॉल्व करना है. मैं इसको थोड़ा सा कंपैक्ट कर रहा हूं, राइट. डन. Now just see over here what we have. Sita and Geeta are partners. Agreed. Ratio 3:2. They had given loan to the firm rupees 30,000 in their profit sharing ratio on which 1st October. And हमने compute करना है interest payable by firm to the partner assuming the firm is closing books on which. बेटा नंबर 6 के अंदर, this is statement number 6. इस पॉइंट के अंदर आपको केयरफुली नोट क्या करना है, इस चीज को थोड़ा सा केयरफुली चेक करेंगे. नंबर 1, दैट इज सीतास एंड गीतास. सीतास इंटरेस्ट ऑन लोन. बेटा टोटल लोन वैल्यू कितनी आई? दिस इज 30,000. इन्होंने लोन जो फर्म को दिया अपनी रेशियो में दिया, एंड रेशियो इज व्हाट? रेशियो हियर इज व्हाट? 3/5 and 2/5. I'm repeating, this 3/2 is to be read as 3 plus 2, 3/5 3/5 multiplied by rate of interest which is not provided, that is 6/100, and multiplied by the period. लोन किस डेट को आया? 1st October. बुक्स कब क्लोज होनी है? 31 मार्च. तो यहां पर जब आप कंप्यूटेशन देंगे, दिस इज फॉर अगेन 6 months is to be given. ये 6 मंथ का पीरियड आपने कंसिडर करना है, एंड 6 मंथ के पीरियड के लिए आपको कंप्यूटेशन देना, एंड द कंप्यूटेशन इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट? 540. मूविंग टू द नेक्स्ट. सीता के बाद कौन है? दैट इज गीतास. गीतास इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड गीतास इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन वैल्यू 30,000, right, multiplied by profit share 2/5, 6/100 into period 6/12. This is going to be rupees what? 360. आंसर्स दोनों आपके पास यहां पर गिवन है, कंप्यूटेशन सारी करेक्ट, राइट. क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम काम कर रहे हैं. क्वेश्चन 7 देखिए. 7 के ऊपर हमने क्या वर्क करना है? 7 में इट इज मेंशन्ड दैट बैट एंड बॉल आर द पार्टनर्स. Their ratio is 2:3. Their capital is 120 and 60. अब यहां पर कंटेंट को देखो. On 1 October 24, Bat and Ball gave loan of rupees 240 and 120 respectively. Bat had allowed firm to use his property business monthly rent of 5,000. There is a loss. Make sure there is going to be what? A loss. ये loss है बेटा. Loss of rupees 9,000 for the period 31 March 25. अब यहां पर एक चीज को बड़ा केयरफुली देखना. We are asked to show distribution of profit or loss. Nowhere it has been asked कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चाहिए, या जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए. अब कंटेंट मेरे पास क्या यहां पर बड़ा क्लियरली विजिबल हो क्या आ रहा है? दैट इज हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना विच इज पेबल, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस टू द पार्टनर्स. एंड दिस थिंग आई एम रिपीटिंग बैक, देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज व्हाट? 9,000 इन टोटल. नाउ पहली बात, यू राइट हियर दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस. नेट प्रॉफिट or loss
is equal to what? There is already a loss of rupees 9,000, right? Rupees 9,000 over here, point number 1, right? अब इसमें आपके पास क्या है कि 1 अक्टूबर को बैट और बॉल ने लोन दिया 240 एंड 140 का रिस्पेक्टिवली. आई एम राइटिंग फॉर बैट B1 इंटरेस्ट ऑन लोन, right? And for other party B2 interest on loan. You are to write in paper bat and ball जो नाम आपके पास given है. Now loan amount 2,40,000. Rate of interest, deed is silent. Deed is silent or rate of interest is given. Yes, deed is silent, and the amount for the period it is given on 1st October 6 by 12 months. Again 1,20,000 into 6 by 100 into what? 6 by. बेटा पहली बात इसकी बड़ी क्लियर एक कंप्यूटेशन आपको शो करनी पड़ेगी, एंड जब कंप्यूटेशन लेंगे दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 7,200 एंड हियर इट इज रुपीज 3,600. तो टोटल अमाउंट जो मेरे पास इंटरेस्ट का आया दैट इज रुपीज 72 माइनस रुपीज 36, दैट इज 10,800. along with एक स्टेप को और नोट कीजिए कि बिजनेस बैट ने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को दिया जिसके ऊपर वो रेंट ले रहा है 5,000 पर मंथ, एंड 5,000 पर मंथ मींस 5 into 12 दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 60,000. जब इस टोटल अमाउंट की आप कंप्यूटेशन करेंगे दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 79,800 रुपीज, एंड दिस इज अ लॉस नॉट ए प्रॉफिट. बेटा एक चीज नोट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन हियर इन दिस केस इज ए चार्ज. ये वाला अमाउंट चार्ज है, माइनस किया. ये वाला अमाउंट भी चार्ज है, ये भी माइनस किया. और रेंट का अमाउंट भी क्या है? चार्ज है. कंप्यूटेशन आपके पास मैं वर्किंग नोट में बड़ा क्लियर लेके जा रहा हूं. बैट का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, बॉल का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, दोनों वैल्यूज की मैंने सम अप करके यहां पे शो कर दिया, रेंट की वैल्यू शो कर दी. अब मेरे पास जो नेट इफेक्ट आया वो 79,800 का. अब इसमें बैट का B1 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लीजिए, दिस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट? एंड सिमिलरली यू टेक बॉल का B2 शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब 70, अब इन प्लेस ऑफ दिस प्रॉफिट रादर इट इज टू बी मेंशन्ड एज व्हाट? लॉस. आई एम रिपीटिंग बैक, दिस इज व्हाट? a loss amount. So share of loss, क्योंकि there is no profit, 79,800 into ratio 2 by 5. Similarly 79,800 into what? 3 by 5. और जब 2 and 5 and 3 5 से आप लेंगे you will be getting these value 31,920, 31,920 to this partner, right? जीरो थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा भाई, बोर्ड तंग करता है कई बार. सो अदर पॉइंट इज व्हाट? 47,880 रुपीज, 47,880. दिस इज व्हाट यू हैव. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8. ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बट समहाउ इसमें एक कंटेंट को बड़ा क्लियरली देखना. वी आर आस्क्ड टू राइट द जर्नल एंट्रीज. अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चन को शेयर करता हूं, क्योंकि अर्लियर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, पहले इंटरेस्ट की बात की, अब तीसरे पॉइंट के अंदर हम जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं. डन. मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट? दिस इज नंबर 8. सो नंबर 8 पे आ जाइए, दैट इज वी हैव जर्नल एंट्रीज ओवर हियर. अब जर्नल एंट्रीज में आइए, ए एस एंड पी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:1. Opening balance of loan by Sunil account rupees 3 lakh. Interest payable 10% per annum. Interest is paid by check up to February on 1 March and the balance was yet to be paid. बेटा काम को बड़ा केयरफुली आपको नोट करना पड़ेगा. क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है. ओनली नीड इज कंटेंट को केयरफुली देखिए कि लिखा क्या. नाउ इन दिस केस मेरे पास सबसे पहले एक काम को देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन ऑफ सुनील, विच डेट इट इज मेंशन नहीं है, तो इट इज अज्यूम्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मोर ओवर इट इज ए बैलेंस. बैलेंस बिगिनिंग ऑफ ईयर का ही आएगा बेटा. अगर ड्यूरिंग द ईयर आएगा तो इट विल बी रिटन दैट सुनील
प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹3 लाख ऑन दैट वेरी डे। पर यहां पर बैलेंस है तो बैलेंस बिगिनिंग को रिलेट करता है। अब एक काम कीजिए दोबारा से, विच आई यूज टू ऐड, भाई प्लीज वर्किंग नोट्स को केयरफुली चेक करना है, नंबर है इनके। सुनील ने कितना हमारे पास यहां पर कंटेंट देखिए, क्या लोन अमाउंट है 3 लाख। सुनील्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कंप्यूट करना है, दिस इज 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट इज प्रोवाइडेड दिस टाइम, रेट गिवन है इसलिए पंगा नहीं करेंगे, 10%, दिस अमाउंट्स टू रुपीज व्हाट 30,000, दिस इज रुपीज 30,000, राइट। नाउ पॉइंट हियर इज कि इस 30,000 में अप टू फेब्रुवरी, अप्रैल टू फेब्रुवरी, 1 अप्रैल टू 28 फेब तक हमने पे कर दिया, एंड मार्च का अभी तक अनपेड है। तो इसका मीनिंग 11 मंथ्स का इंटरेस्ट विच इज 27,500 आप पेमेंट में शो करेंगे, एंड ₹2500 ये वैल्यू अनपेड शो करेंगे, करेक्ट। अब यहां पर कंटेंट देखिए, मेरे पास जर्नल एंट्रीज क्या आएंगी, उसके रिलेटेड आपको केयरफुली समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग जर्नल ओवर हियर। जर्नल के लिए फिर वही बात बोलूंगा, बेटा प्लीज फॉर्मेट जरूर ड्रॉ कीजिए, चाहे थोड़ा सा कंटेंट लीजिए, लेकिन बिना फॉर्मेट के कहीं भी मत जाइए। दिस इज अमाउंट डेबिट इन रुपीज, अमाउंट क्रेडिट इन रुपीज, एंड हियर इट इज डेट एंड पर्टिकुलर्स रिस्पेक्टिवली। मैं कॉलम लेजर फोलियो का अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। अब मेरे पास कंटेंट यहां पर क्या आया, नोट कीजिए केयरफुली। मेरे पास यहां पर कंटेंट है दैट इज विच रिलेट विद दैट ओपनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन था, पहला पॉइंट, एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया 2025 मार्च, इट इज मार्च गिवन, इट इज 1 मार्च 1 को दीजिए इंटरेस्ट। एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इट इज ईदर कैश और बैंक अकाउंट। ये पे कर दिया, कितना पे किया 27,500। दूसरा पॉइंट, मेरे पास पे करने के बाद मार्च 31 पे आप आ जाइए, दोबारा से कंप्यूटेशन दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इट विल बी नाउ 2, लोन किसने दिया था यहां पर, लोन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सुनील, तो दैट इज टू सुनील्स लोन अकाउंट, अमाउंट स्टिल पेबल है, और यू मे राइट इंटरेस्ट पेबल अकाउंट एज वेल, और टू, दोनों में से एक ही काम करना भाई, दोनों नहीं कर रहे, और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, एंड दिस अमाउंट इज रुपीज व्हाट 2,500 विद डेबिट एंड 2,500 विद क्रेडिट, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31। अब एक चीज बड़े केयरफुली नोट करने वाला ये है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इट इज ए चार्ज, और चार्ज का डेस्टिनेशन कहां पर है, एंड प्लेस कहां पर है, मेरे को दोबारा रिपीट करने का नीड नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज अगेन व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एज इट इज ए चार्ज, तो मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊंगा। विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्रूअल अजम्पशन, याद रखिए बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है, वेदर इंटरेस्ट इज पेड और अनपेड, अगर वो मेरे पास करंट पीरियड को रिलेट करता है, द होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L, पूरी की पूरी अमाउंट चार्ज है, दैट इज रुपीज व्हाट 30,000, राइट। I hope it's clear. You can take the screenshot as well. Along with this, I'm moving to next question. Now, next question मेरे पास क्या है? That is interest on loan by firm, by loan to firm by partner और loan by firm to partner. बेटा यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके पास गिवन है 9, 10, 11. आई होप कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो इट विल टेक मच मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास, नंबर 11 को कंसिडर करता हूं। शगुन डालते हैं अभी 11 रुपए का, आज 11वां क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, और शगुन भी 11 का है, राइट। 11th क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पॉइंट हियर इज, यहां पर सबसे पहले आप केयरफुली नोट कीजिए, वी आर आस्क्ड टू राइट जर्नल एंट्रीज। वन थिंग,
इमीडिएटली आपके पास ये चीज ट्राई करनी चाहिए। करना क्या है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 11 के अंदर मुझे जर्नल शो करनी है, तो राइट हियर जर्नल एंट्री और फटाफट कॉलम्स अपने ड्रॉ कर लीजिए, कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। राइट, दिस इज व्हाट वी हैव अ जर्नल एंट्रीज। सिर्फ जर्नल की बात करूंगा और बड़ा अच्छे से आपको समझा दूंगा कि इस कंटेंट को सॉल्व कैसे करना है। राइट, वेट कीजिए। ओके, डन। So point here is we have three partners A, B and C, Ankit, Bhanu and Charu, ABC. Their profit ratio is what? Equal, done. Their capital balance is 2.5 lakh each, 250, 250, 250 on 1 October 24. अंकित और भानु ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को 2.5 लाख ईच, और चारू ने लोन लिया हुआ है बिजनेस से 1 लाख, और किस डेट को लिया? 1 नवंबर को। अब एक कंटेंट यहां पर बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि लोन जो प्रोवाइड किया गया टू फर्म वो है 1 अक्टूबर 24, और जो लोन पार्टनर ने बिजनेस से लिया है वो है मेरे पास 1 नवंबर। इट वॉज एग्रीड among the partners चारू will be charged at the rate 6%। अब चारू ने लोन लिया ना, तो कहते 6% चारू से बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन दे। राइट, चारू will be charged interest 6% per annum। Interest on loan to partner was paid on 10th April and the firm closes books on what? 31st March। भाई पहली बात अपने माइंड में ये बड़े अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि डीड यहां पर प्रोवाइडेड है, यहां कहीं भी नहीं लिखा देयर इज एब्सेंस ऑफ डीड। तो यहां पर लोन, पहली बात, जो पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन दिया उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है। एंड वी नो एज पर द प्रोविजंस इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू पार्टनर्स विल बी एट द रेट ऑफ व्हाट? 6% पर एनम। जबकि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चारू से चार्ज किया जाएगा दैट इज व्हाट मेंशन्ड, वो बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, चार्ज एट द रेट व्हाट? 6% पर एनम। तो जर्नल एंट्रीज आपको देनी है, क्लियरली केयरफुली देखिए। सो फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन व्हाट? 31 मार्च ईच ईयर। बेटा यहां पर ईयर 2025 है, राइट, इट इज 2025। एंट्रीज आप सारी की सारी मार्च 31 को देंगे, लेकिन फिर भी एक चीज मैं दोबारा से आपको क्लियर कर रहा हूं, वर्किंग नोट्स को बड़ा क्लियरली शो कीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आया कि अंकित एंड भानु दोनों ने जो बिजनेस को लोन दिया वो 2,50,000 ईच है, तो इसलिए एक चीज बड़ी क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का अमाउंट सिमिलर होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। राइट, सो अंकित एंड भानुज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन व्हाट? लोन। कितना लोन अमाउंट दिया उन्होंने? दिस इज गिवन रुपीज व्हाट? 2,50,000। दिस इज 2,50,000 एट द रेट नहीं गिवन है 6%, which time it has been given on 1 October to the end of the year, it is what? 6 महीने, 6 मंथ के लिए। कंप्यूटेशन दीजिए 2 3, it is going to be rupees what? रुपीज 7,500। पहला पॉइंट, राइट। दूसरा, सीज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो लोन है दिस इज अमाउंट पेएबल, अंडरस्टैंड कर लीजिए, एंड दिस इज अमाउंट व्हाट? चार्जेबल। ये चार्ज करना है, बिजनेस की, फर्म की इनकम है, एंड द अमाउंट ओवर हियर इज, इट इज 1 लाख। नोट कीजिए, इट इज व्हाट? 1 लाख। रेट 6% डीड के अंदर प्रोवाइडेड है। नाउ नोट डाउन द पीरियड वेरी केयरफुली, पीरियड को अच्छे से नोट कर लीजिए। पीरियड इज योर्स गिवन ऑन विच डेट? अगेन 1 नवंबर। ईयर एंडिंग ऑन विच डेट? 31 मार्च। तो पीरियड विल बी व्हाट? 5/12। बेटा रीडिंग टाइम जो आपको पेपर में मिलता है 15 मिनट का बोर्ड के अंदर, उस अमाउंट को, उस टाइम को यूज कैसे करना है वो आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अब जब भी पेपर पढ़ना शुरू करें तो पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है उसके अंदर जैसे मैं जनरली क्वेश्चन रीड करते हुए कुछ चीजों को हाईलाइट कर लेता हूं, अंडरलाइन कर लेता हूं, सेम आपको अडॉप्ट करना है।
आपको सेम सिस्टम के साथ चलना है, इसमें चेंज मत कीजिए। एक चीज अभी से लर्न करना शुरू कर दीजिए सो दैट ये आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट, इसको नोट कीजिए, ₹2500 ये अमाउंट है मेरे पास। अब कंसिडर करके चलना कि एंट्रीज आएंगी क्या। बेटा पहली एंट्री, यहां पर एंट्रीज को बड़ा क्लियर करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना है, इज एक्सपेंस, ए चार्ज टू द बिजनेस, अकाउंट डेबिट किसका, टू एज लोन अकाउंट, देख लीजिए, टू बीज लोन अकाउंट, राइट। अमाउंट इट इज 7500 ईच, 75 and 75, total amount stands at what, 15,000. Entry number 1. Entry number 2, that is what, interest on loan। पहले A और B को कर दिया, अब C के interest on loan की बात करो तो यहां पर C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये चीज आपको पहले बड़ा क्लियरली बता दिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, कि जब आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे एज ए फर्म तो वो तुम्हारी इनकम है और इस इंटरेस्ट अमाउंट को चार्ज किया जाएगा उसकी कैपिटल में से, रीजन उसकी इक्विटी इस इंटरेस्ट अमाउंट से कम हो जाएगी। लेकिन जब पार्टनर लोन दे रहा है बिजनेस को तो देन ही इज ट्रीटेड प्योरली एज एन आउटसाइडर, राइट। तो वहां पर वो क्रेडिटर की फॉर्म में रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, सीज लोन। बाइफर्केशन करना सीखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन व्हाट, सीज लोन। इट इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट, 25। जब वैल्यू को चार्ज किया जाता है, इनकम शो करना है तो थोड़ा सा डिफरेंटली दीजिए ताकि दोनों के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना इजी रहे। अब पॉइंट यहां पर यह आया कि भाई यहां कहीं भी नहीं लिखा है दैट इंटरेस्ट इज पेड और नॉट पेड, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है इंटरेस्ट इज पेड। देखिए लोन लिया चारू ने बिजनेस को, चारू बिजनेस से लोन ले रहे, चारू विल बी चार्ज एट दिस, एंड हियर एक चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th April 25। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स पेड, बिजनेस ने 10th April को पे करना है, लेकिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं दैट इज March 31। हमें जितनी एंट्रीज देनी है March 31 तक देनी है, क्योंकि रीजन बड़ा क्लियर है, जर्नल एंट्रीज ऑन दिस डेट। अब यहां पर आपको एक एंट्री एडिशन में करनी पड़ेगी, लोन अकाउंट डेबिट, दैट इज ₹7500, राइट। बीज लोन अकाउंट डेबिट, right, this is again 7500, and here to interest payable account, payable means which is yet to be paid, and payable account it amount to rupees what, 15,000। एक चीज और नोट करना, इन एंट्रीज को कंबाइन किया जा सकता, कौन सी एंट्री, एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 3 इसको कंबाइन कर सकते। कैसे कंबाइन कर सकते हैं इन दोनों एंट्रीज को, इन दोनों एंट्रीज को कैसे कंबाइन कर सकते हैं भाई, एंट्री यू राइट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एंड टू इंटरेस्ट पेबल। व्हाट डज इट मीन, डेबिट आपने जो क्रेडिट किया ए लोन बी लोन, और जो डेबिट किया ए लोन बी लोन, इसको निकाल दीजिए। क्यों, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट, ए कंबाइंड एंट्री ऑन सेम डेट विद अ सिंगल इफेक्ट। वो इफेक्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू, बट मैं फिर यही बोलूंगा कि भाई प्लीज आप दोनों एंट्रीज को लिखने की आदत डालिए ताकि हमारे पास फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट, March 31 को दोबारा आ रहा हूं यहां पर। अब मेरे पास केयरफुली नोट करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर जो मैंने डेबिट किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैंने यहां डेबिट किया था, दिस लोन इज व्हाट, ए चार्ज। और चार्ज को आपने कहां शो करना है, मैं रेड पेन से दे रहा हूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये चार्ज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हियर इट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, लोन अकाउंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट। बेटा एक चीज कंसिडर करना है, हर आइटम का एक डेस्टिनेशन है, एक एंड पॉइंट है, और उस एंड पॉइंट को लोकेट आपको करना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया मेरे पास यहां पर, उसको भी कंसिडर करूंगा। वो क्या है कि इंटरेस्ट जो आपने चार्ज किया इन एंट्री नंबर 2,
इसको भी क्लोज करना है। किस डेट को? मार्च 31। डिफरेंट कलर फिर शो कर रहा हूं कि आपके पास प्रॉब्लम ना हो समझने में। इंटरेस्ट ऑन इट इज सीज लोन अकाउंट डेबिट, हियर यू राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा इनकम क्या है, लॉस क्या है, एक्सपेंस क्या है, इन चीजों को माइन्यूटली अभी से समझना शुरू कर दीजिए, सो दैट इट शैल रिमेन इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर। So you may take a screenshot of question number 12 and 13 as well, right? मैं question number 12 and 13 को थोड़ा सा कंपैक्ट कर देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 12, 13 के साथ आप सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13. Here it is question number 6, 7, 8, 9, 10, right? Then question number it is 5 and 4, agreed. Then question number it is 3, 2, here it is 3 and 2, right? And finally this is question number 1. So यहां पर आप एक काम कीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिए सो दैट ये आपके लिए इजी रहे कि आपने क्या कंटेंट आज लर्न किया और क्या आपको सॉल्व करना है। प्लीज मेक श्योर कि आपने जो भी कंटेंट लर्न किया है उसको आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर कि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर, आपके लाइक्स मेरे लिए एक एंथुसियाज्म है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू। टिल वी शेयर आवर नेक्स्ट वीडियो in fundamental part 6. Goodbye. Thank you very much.